नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गौरचते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So, we are very great fortune to have today with us His Grace Anantarup Gaur Prabhu. Hari Bol. So, I would like to give a brief introduction of Prabhuji. So, as I told, Prabhuji's name is Anantarup Gaur Prabhu, and he has done his B.Tech from NIT Jaipur, and then he worked as a software engineer in MNC, and he also cracked IIT with AIR 5900, and also cracked NDA 3 times. Then also in his junior college days, he is awarded with the scholarship of ₹5 lakh, being the first student of his college who has cracked the IIT exam. And then Prabhuji joined ISKCON in 2012, and currently Prabhuji is serving in ISKCON as a youth preacher. Basically, youth preacher means to give the knowledge of this Bhagavad Gita to the youths of India, to cultivate youth more nicely, traditionally. And Prabhuji
goes to many of the places also, like Prabhuji goes to Ghatkopar, their students are there, and IIT Gandhinagar also Prabhuji went. So today Prabhuji is here with us. So let us welcome Prabhuji by our heartily chanting. So we chant once Hare Krishna Mantra for Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Once again, now I will not chant. I want to see what is the pitch of your voice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you very much for kindly coming to this place and giving your valuable time, especially in this so fast city of Mumbai, to give some time. It's very rare, but you have come here. But it's a fact that whatever time you spend within this Hare Krishna land, either by attending discourses on Gita, by chanting Hare Krishna mantra, or by taking darshan of the Lord, so that is the best utilization of the time, best utilization of the time. Why? Because Lord Krishna teaches in Bhagavad Gita. All of you know Bhagavad Gita? Oh, I had one question I asked in the beginning. What was the question? Gita Life, regarding Gita Life. How many of you are attending this Gita Life program from last at least 2-3 months? Okay, almost 30-40%. And who is coming first time? Okay. So especially those who are coming first times, we warmly welcome them by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. So his question was, Gita Life, Gita means Bhagavad Gita. Bhagavad Gita means song of God, song of Lord Shri Krishna. So this is life. So can anybody of you explain why Bhagavad Gita is life? Yes? Any guess? You can tell whatever experience you have, whatever knowledge you have. What is the meaning of life? Life means कुछ भी बोलिए. लाइफ मतलब सांस चलता है, हाथ पैर चलते हैं, वो लाइफ हुआ. What is the meaning of life? We all have life. So we should know what is the meaning of life. We all are human beings. So we should know what is the meaning of human being. What is meant by term human. Is it not necessary? What do you think? Suppose you have some this Android phone, some gadget, some machine, technology. So you should know the meaning, how it works, what is the purpose of this machine, what is the purpose of this Android phone, how to operate it. Suppose if somebody has iPhone, latest version, what is the latest version? 14. I14. Earlier it was my phone. It is my phone. Don't take it away. मेरा फोन है. उसको बोलते हैं ममता. Now it has become iPhone. iPhone means I am the phone. This is ahamkar. So two things. In Srimad Bhagavatam it is explained ahamkar and mamata. Mamata means this is mine, and ahamkar means this is I am this, I am that. And when you say I am boy, I am Hindu, I am Indian, I am a student, I am engineer, I am doctor. So this is ahamkar. Ahamkar, there are two kinds of ahamkar. Mithya ahamkar and satya.
सही अहंकार। मिथ्या अहंकार मीन्स फॉल्स ईगो। अहंकार मीन्स ego. Ego means sense of identification. It may be true also, it may be false also. So, but when we identify with this body, that is known as mithya ahankar. That which is not true. Suppose you are not working, you have no job, you are just searching for the job. But if you meet somebody and he asks what do you do, and you say I am manager in falana company. So this is mithya ahankar. True? Suppose if you are really manager of some company and then somebody asks you who are you, and you say I am manager of this company. So then that is true ahankar. You understand? Ahankar means ego, sense of identification. That is known as ahankar. So what is this life? We should know that also. Is this life a mere combination of some kind of chemical? Yes. In our body, so many chemicals are there. Blood is there, bones are there, calcium, oxygen, nitrogen, liver, heart, so many things. So is this true that this life is only all about some kind of chemicals assembled together to make a form? Yes, how many of you think this is correct? Yes? You are able to follow me? You are able to understand? Really? English is comfortable to everyone? So what do you think? What is your opinion about life? Is this life only a bunch of chemicals made up of earth, water, fire, air, ether, assembled together in some combination? Yes, or something higher? Yes, sir. If you take out all the chemicals from the body and diagnose, and you go and ask to purchase these chemicals, so what will be the cost? कितना कॉस्ट पड़ेगा? हमारे शरीर में अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, यही सब है ना। तो इसको अगर आप निकाल देंगे, आपका वेट मान लो कितना है? 60 किलो, 80 मेरे से डबल। तो 80 किलो का जो भी केमिकल है वो आप अगर मार्केट में जाएंगे खरीदने तो कितने में मिल जाएगा? 500-1000 रुपये में मिल जाएगा ना। क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर इतना है, इतना सारा पड़ा हुआ है सब। तो क्या आपका वैल्यू इतना ही है? आपको क्या लगता है? अगर मान लो आपका फ्रेंड है, आपका एक दोस्त मित्र है, वो बाइक से जा रहा है, 80,000 का बाइक है। कौन सा बाइक 80,000 का? इनको बताऊँ, आपको मालूम? स्प्लेंडर। 80,000 की बाइक में जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक टूट गया, तो आप क्या करेंगे? हे भगवान, 80,000 का पूरा काम तमाम हो गया, ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? अपने मित्र के लिए बोलोगे, लेकिन मित्र तो 1000 रुपए का ही है। बाइक का तो ज्यादा नुकसान हुआ ना, वो तो 80,000 का था, तो उसको पहले आप लेके जाओगे ना गैरेज में, क्योंकि अगर मित्र चला गया तो 1000 रुपए का नुकसान है, और बाइक चला गया तो 80,000 का नुकसान है। समझ पा रहे ना? यही करेंगे? नहीं करेंगे ना? तो यही पे आ गया डिफरेंस। इसका मतलब वो जो आपका मित्र है वो केवल 1000 रुपए का बंडल नहीं है, उसमें ये जो ये बंडल है, बंच है बॉडी, भौतिक तत्वों का, वाटर, फायर, एयर, ईथर का, ये 1000 रुपए का वैल्यू है। लेकिन इसके अंदर जो लाइफ है वो इनवैल्यूएबल है, उसका कोई कीमत ही नहीं। समझ गए? ये है लाइफ। अभी मैंने बताया नहीं कि लाइफ है क्या एग्जैक्टली, अभी बस मैं क्या बताया कि लाइफ क्या नहीं है, कंपेयर करके बताया कि ये जो शरीर है इसके कंपैरिजन में लाइफ क्या है, बहुत ही ज़्यादा इनवैल्यूएबल है, उसका कोई
हिसाब ही नहीं कर सकता है। लाखों रुपए भी खर्च करके लोग उसको बचाना चाहेंगे, बचाते हैं ना। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये जो बॉडी है इसके कंपैरिजन में लाइफ जो है बहुत ही वैल्यूएबल है। अब वो लाइफ है क्या, कोई बताएंगे? सोल। सुना है? The very first teaching in the Bhagavad Gita Lord Krishna gave to Arjuna is that you are not this body, you are spirit soul. कि तुम ये शरीर नहीं हो जो हमको दिखता है सामने, वो नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। शरीर नष्ट हो जाता है। अंतवंतु इमे देहा नित्य शोकता शरीरिणा। अंतवंत तो इमे देहा, दिस देहा, देहा मतलब शरीर, बॉडी। अंतवंत इसका तो नष्ट आता है, अंत आता है। बट नित्य शोकता शरीरिणा, लेकिन जो शरीरी है वो क्या है? नित्य है, सनातन है। शरीरी का मतलब शरीर और शरीरी दो अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे धन और धनी, ज्ञान ज्ञानी, समझ रहा है ना? ज्ञान और ज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी कौन है? वो व्यक्ति है जिसके पोजीशन में ज्ञान है कुछ। धनी कौन है? वो व्यक्ति है जिसके पोजीशन में, जिसके पास धन है। समझ पा रहे ना? तो पोजेसर ऑफ धन इज नोन एज धनी, पोजेसर ऑफ ज्ञान इज नोन एज ज्ञानी। सिमिलरली पोजेसर ऑफ देह इज नोन एज देही, पोजेसर ऑफ शरीर है इज नोन एज शरीरी। समझ पा रहे ना? तो हम लोग देह हैं या देही हैं? हम लोग देही हैं, लेकिन हम मानते अपने आप को देह हैं। दैट इज मिसअंडरस्टैंड। हम अपने आप को मानते क्या है? देह है। वही क्या है? फॉल्स ईगो है। ईगो का मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करना, उसको बोलते हैं ईगो। लेकिन अगर हम अपने आप को गलत आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स ईगो। इस शरीर से रिलेशन में कोई भी आइडेंटिफिकेशन आप रखेंगे तो क्या है? फॉल्स ईगो है। आप बोलेंगे मैं इंसान हूं, वो भी फॉल्स ईगो है। क्योंकि इंसान कौन है? मनुष्य कौन है? शरीर है ना। ये शरीर आपको ऐसा मिला है तभी तो आप बोल रहे हैं मैं मनुष्य हूं। आप बोलेंगे मैं हिंदू हूं, तो हिंदू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हिंदू माँ बाप के घर में आपने जन्म लिया, इसलिए हिंदू बोल रहे हैं। वो भी शरीर का पहचान हो गया ना। आप बोलेंगे मैं लड़का हूं, वो भी शरीर का पहचान हो गया। मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये सब किसका पहचान है? शरीर का पहचान है। या मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर कौन बनता है? शरीर के द्वारा ही तो आप डॉक्टर बनते हैं। तो भी क्या हुआ? शरीर का पहचान हो गया। तो इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। बट ट्रू ईगो क्या है? हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है? कि मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, आई एम इटर्नल। इटर्नल समझते हैं ना? परमानेंट। सनातन हूं मैं, सनातन। और हमारा आइडेंटिटी क्या है? आई एम इटर्नल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम इटर्नल। जैसे ये जो शरीर है किससे मिलकर बना है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो यूनिवर्सल बॉडी है, इसको सुप्रीम बॉडी बोल सकते हैं। सुप्रीम बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी, यूनिवर्स है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से मिलकर तो बना है ना पूरा यूनिवर्स। तो उसका पार्ट एंड पार्सल क्या हुआ? ये शरीर हुआ। उसी से तो उत्पन्न हुआ ना, प्रकृति से हमारा ये शरीर बनता है। तो इस भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट एंड पार्सल क्या हुआ? ये शरीर हुआ। लेकिन हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। तो हम भी तो किसी न किसी सुप्रीम आत्मा के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो वो सुप्रीम आत्मा है, सुपर सोल भी बोलते हैं जिसको, ये सुप्रीम सोल बोलते हैं, या सुप्रीम लॉर्ड बोलते हैं। वो कौन है? कौन है? कृष्ण है। कैसे मालूम कृष्ण है? कौन बताएगा? आप बताओ। स्क्रिप्चर्स, वेरी नाइस। स्क्रिप्चर से तो पता चलेगा, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? अपने बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से हम बस ये पता लगा सकते हैं, ये जान सकते हैं कि देयर मस्ट बी समबडी सुप्रीम।
कि कोई ना कोई सुप्रीम होना चाहिए। हाँ, ये बुद्धि लगा सकते हैं। जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या जॉब करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके इंटेलिजेंस से, आपके ऑब्जर्वेशन से आप ये समझ सकते हो कि कोई ना कोई हेड है यहाँ पे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई डायरेक्टर है, कोई ना कोई सीईओ है। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं सब कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा है, वेल ऑर्गेनाइज है, वेल प्लान है, रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न किया जा रहा है। तो कोई ना कोई कंट्रोलर होना चाहिए। हाँ, कोई ना कोई लॉ मेकर होना चाहिए, लॉ इन्फोर्स करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा। ये तो समझ सकते हैं ना लॉजिकली। हालांकि आपने मान लो आप में से कितने लोग ये मुंबई का जो इधर का नगर पालिका है उसको देखा है? आपने बस 1, 2, 3 लोगों ने देखा है। लेकिन बाकी लोग जानते हैं ना कि नगर पालिका है। क्यों? क्योंकि मुंबई नगर में इतना सारे लोग रहते हैं, इतना सब मिसमैनेजमेंट को बचाने के लिए, मैनेज करने के लिए चीज़ों को, क्या है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो वर्क करती है नगर पालिका के डायरेक्शन में। तो इसी प्रकार से इसी लॉजिक को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस पूरे यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन में। यूनिवर्स में सब कुछ सिस्टमेटिकली वर्क कर रहा है, सब कुछ इतने सुंदर लॉज हैं, लॉ को फॉलो करते हुए चीज़ें चल रही हैं। प्लैनेटरी मोशन जो है सब लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि कोई ना कोई सुप्रीम ब्रेन होगा, कोई ना कोई सुप्रीम डायरेक्टर होगा, सुप्रीम क्रिएटर तो है। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी क्या कहा? देयर मस्ट बी अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंक्लूजन दिया कि होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई नहीं है, सब कुछ बाई चांस चल रहा है। चलो अगर हम बोलते हैं बाई चांस यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन हो गया, पहली बात तो यह संभव है, बाई चांस तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मान लिया चलो ये बाई चांस अपने आप ही क्रिएशन हो गया। लेकिन क्रिएशन होने के बाद इतना मेंटेनेंस कैसे हो रहा है? समझ पा रहे? ये मैनेज कैसे हो रहा है? इतने सारे प्लैनेट्स हैं, घूम रहे हैं हवा में, कैसे एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं जाते? करोड़ों करोड़ों प्लैनेट हैं। ट्रैफिक चौराहे में तो हजारों व्हीकल्स होते हैं, उसको भी मैनेज करने के लिए बेचारा ट्रैफिक वाले एक एक साइड में 3-3, 4-4 ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, फिर भी मैनेज नहीं कर पाते। तो इतने करोड़ों प्लैनेट्स हवा में तैर रहे हैं, तो कभी आपने सोचा कि कोई आके टकरा क्यों नहीं जाता है? सब वेल मैनेज है कि नहीं है? आप बोलेंगे वो तो साइंटिफिक लॉ है ना, ग्रेविटेशनल लॉ लगा हुआ है। तो लॉ किसने लगाया है? जैसे ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, तो छोटा बच्चा ही मूर्ख, कोई बच्चा ही बोलेगा कि कोई नहीं है, कोई सब अपने आप चल रहा है, ट्रैफिक लाइट अपने आप खड़ा हो गया, अपने आप चल रहा है। कुछ समय में रेड हो जाता है तो सामने वाला समझ जाता है कि रेड में नहीं जाना है, फिर ग्रीन हो जाता है। तो ट्रैफिक लाइट बनाने वाला व्यक्ति है ना, और ये लॉ इंप्लीमेंट करने वाला कि रेड लाइट मतलब रुक जाना है, ग्रीन में चलना है ना, एक इंस्ट्रक्शन हुआ ना, तो ये बनाने वाला कोई व्यक्ति है ना। उसी प्रकार से यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन में जो भी सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, तो उसके पीछे जो लॉ बने हुए हैं, साइंटिफिक लॉज, ग्रेविटेशनल लॉ, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, ऑप्टिक्स के लॉज, बहुत सारे लॉज हैं, सबने पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो वो लॉ बनाने वाला व्यक्ति कौन है, और लॉ को फिर इन्फोर्समेंट किया जाता है, वो कौन करता है? तो अपने आप एक क्वेश्चन अराइज होता है, यस देयर मस्ट बी सम परफेक्ट ब्रेन हु इज वर्किंग बिहाइंड ऑल दिस। लेकिन केवल इस तरह के एनालिसिस करके हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं कि वो कौन है। जिस प्रकार से आप अभी मंदिर में आए, मंदिर में आप देख रहे हो सब वेल ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे गीता लाइव प्रोग्राम हो रहा है, टेम्पल हॉल में कीर्तन हो रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पुजारी कर रहा है, कोई गिफ्ट शॉप में है, कहीं पे प्रसाद ट्रांसफर हो रहा है, कहीं पे प्रसाद बन रहा है, सब मैनेज है ना। तो आप ये तो समझ सकते हो कि कोई ना कोई यहाँ का प्रेसिडेंट होगा जो ऊपर से सब कुछ देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना, ये समझ में आता है। लेकिन क्या आपका बुद्धि लगा के आप ये बता सकते हो कि वो प्रेसिडेंट कौन है? बता सकते हैं? कितना भी आप इंटेलिजेंट हो, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कैसे पता चलेगा यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? हाँ, कि जाके इस्कॉन मंदिर का, इस्कॉन जू का ऑफिशियल पेपर देख लो उठा के, उसमें लिखा रहेगा प्रेसिडेंट हिज ग्रेस ब्रज हरि गुरु, वाइस प्रेसिडेंट
सो मेनी इंचार्ज कैरेक्टर एचओडीज, समझ पा रहे हैं? एक तरीका ये है। और फिर दूसरा, जो यहाँ पे रहते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, प्रेसिडेंट को तो एक्सेस नहीं कर सकते आप, लेकिन जिनको एक्सेस कर सकते हो, हम लोग एक्सेस कर सकते हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो विप्रोज यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, कितना अच्छे से वेल मैनेज है, देखो कितना सुंदर टेम्पल है, कितना क्लीन है ना। दिस वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इस्कॉन टेम्पल विच इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। मैं पहले भी जो बहुत सारे मंदिर में गया था, ज़्यादातर मंदिर में गंदगी रहती थी, वो नारियल के छिलके पड़े हुए हैं, कहीं अगरबत्ती पड़ी हुई है, ये है वो। लेकिन ये ऐसे पहला एक मंदिर था जहाँ पे सो वेल मैनेज, सो क्लीन, इतना अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। इससे पता चलता है कि कोई ना कोई बहुत ही इंटेलिजेंट और सिंसियर पावरफुल व्यक्ति बैठा है जो ये सब चीज़ें देख रहा है, तभी तो होगा ना। नहीं तो आप देखो, आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, या हॉस्टल मतलब या तो पीजी में रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, बस आप ही बस, बाकी सब घर पे हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं। मतलब जो पेरेंट्स के साथ नहीं है, कितने लोग हैं? एक दो लोग हैं, ठीक है, तो उनके रूम पे कभी जाके देख लो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आप साफ रखते हो, एक छोटा सा रूम को भी क्लीन करके साफ करके रखने में हालत खराब हो जाता है। इतना बड़ा मंदिर को कैसे मैनेज किया जाए, फिर इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे मैनेज किया जाए। तो हमारे बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ सकते वो व्यक्ति कौन है, केवल और केवल स्क्रिप्चर से, या उस व्यक्ति जो हमारे लिए एक्सेसिबल है वो उसको जानता है। तो उसी प्रकार से भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर है, ये हम समझ सकते हैं अपने छोटा सा बुद्धि लगा के। हाँ, लेकिन हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कौन है। वो समझने के लिए केवल एक ही तरीका है कि हम स्क्रिप्चर्स को एक्सेप्ट करें, शास्त्रों को एक्सेप्ट करें, तब हम जान सकते हैं कि कौन है वो सुप्रीम कंट्रोलर। कृष्ण ही क्यों है सुप्रीम कंट्रोलर, या जो साधु हैं जिनको एक्सेस है भगवान, तो उनके द्वारा हमको पता चलता है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि हम स्क्रिप्चर्स को क्यों माने। ये जरूरी थोड़ी ना कि ये स्क्रिप्चर्स जो हमको पढ़ाया जा रहा है वो सही हो। हालांकि हम जो स्क्रिप्चर्स फॉलो करते हैं वो क्या है, भगवत गीता, वेल नोन। कोई हम फलाना उपनिषद ला के नहीं दिखा रहे आपको कि ये उपनिषद है, या वेल ऑथराइज 108 उपनिषद है, सारे उपनिषद का कंक्लूजन है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। 18 पुराण है, सबका कंक्लूजन है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और भगवत गीता है, उसका कंक्लूजन है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भागवतम का कंक्लूजन है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अब एक भी शास्त्र आप लेके आओ जिसमें कंक्लूजन ये हो कि कृष्ण परम भगवान नहीं है, ऐसा है ही नहीं कोई भी शास्त्र। जब कृष्ण ने खुद बोला भगवत गीता, तो उसमें भी साफ साफ कृष्ण बताया कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत्, बियॉन्ड मी देयर इज नोबडी, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। माता हम पिता, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। I am the father, I am the mother, I am the dhata means I am the maintainer. Updrishta Hanumanta cha Bharta Bhokta Maheshwara. Updrishta means I am overseeing everything. Under my supervision everything is going on. Hanumanta, I am the sanctioner, ultimate sanctioner. Sanctioner means whatever activities are going on in this world, whether in nature or in our own self, कुछ भी कार्य होता है तो उसका सैंक्शन कौन करता है, भगवान करते हैं। आप अपने पलके भी झपकाते हो तो आपको नहीं पता चलता है, आपकी इच्छा से नहीं होता है, लेकिन उसको भी सैंक्शन भगवान करते हैं। आप हाथ उठाते हो, उसको भी सैंक्शन भगवान करते हैं। लेकिन ये फास्ट, इतना फास्ट होता है कि हमको समझ में नहीं आता है, हमको लगता है कि ये मैंने किया है। एक्शन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, कोई गैप नहीं, डिले नहीं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने बोला कि एसी बढ़ा दो, और जैसे ही बोला एसी तुरंत बढ़ गया। मैं बोला मुझे पानी चाहिए, तुरंत पानी आ गया। बोला करताल चाहिए, तुरंत करताल आ गया। बुक चाहिए, तुरंत बुक आ गया। ऐसा मान लो कोई मैकेनिज्म हो जाए, तो ये तो मेरे बोलने में हो रहा है। मान लो मैं मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि मैं केवल इच्छा करूँ
AC बढ़ना चाहिए, AC बढ़ गया, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, लेकिन मेरी इच्छा को समझ के वो फटाक से कर दे रहा है, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, 18 चैप्टर में भगवान कृष्ण बोलते हैं, वर्स नंबर 62, ईश्वरा सर्वभूतानां, किंग I am the Ishvara. Ishvara means controller. I become the controller residing within the heart of every living entity. Sarva Bhutanam Hrideshe, Hridaya. In the region of heart, I reside as Paramatma. And from me comes remembrance, forgetfulness, and knowledge. Ishvara Sarva Bhutanam Hrideshe Arjuna Tishtati Bhramayam Sarva Bhutani Yantra Gunhani Maya. Brahman means all the living entities are wandering in this material world. Whatever actions they are doing, they are all the actions are done by my sanction. I am the controller, and this body is compared as machine. लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि हमको लगता है कि मैंने किया, क्योंकि हम जैसे डिजायर करते हैं, तो हम जो भी डिजायर करते हैं, इनफैक्ट हमारे डिजायर आने के पहले भगवान को पता चल जाता है कि ये डिजायर करेगा, तो भगवान रेडी रहते हैं। जैसे हम डिजायर करते हैं तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, वो हो जाता है, फुलफिल हो जाता है वो डिजायर, साइमल्टेनियसली वो सैंक्शन हो जाता है और हम तुरंत कर देते हैं। जैसे मैं हाथ उठाया, तो ये इनबिल्ट मैकेनिज्म आप लोग जानते होंगे, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, सुना है? कॉन्शियस माइंड मतलब कि जैसे अभी मुझे पानी पीना है, तो मैं सोचा कि पानी पीना है, मैं ऐसे बॉटल उठाया और बॉटल को खोला, है ना, और ऐसे पानी पिया, जिसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉन्शियस माइंड। अभी जैसे मैं बात करते करते हाथ उठाया, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि मेरे इच्छा से ही हो रहा है, बट इट इज सो इंट्रिंसिकली connected with the mind that I am unable to practically identify it. इतना ज्यादा ये समझ पा रहे हैं ना, जो मेरी इच्छा से हो रहा है लेकिन पता भी नहीं चल रहा है। जैसे हम सांस लेते हैं, तो आप चाहो तो सांस रोक भी सकते हो ना अपना, ये सांस आप चाहो तो ले भी सकते हो, लेकिन दिन भर हम सांस लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं रहता है, लेकिन वो सांस ऑटोमेटिकली चल रहा है। हार्ट बीट तो खैर हमारी इच्छा पे नहीं है, आप चाहो तो हार्ट बीट रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। हार्ट बीट तो इनबिल्ट है, वो केवल परमात्मा ही सैंक्शन कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पूरा परमात्मा के इच्छा पे है। कुछ चीजें हैं जो केवल परमात्मा के कंट्रोल पे, जैसे डाइजेशन, आप चाहो तो भी, जैसे आप खा के आए तो मैं चाहूंगा मुझे 2 घंटे नहीं पचाना है, ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो परमात्मा के ही ऊपर है, वो चाहे तो डिसाइड कर सकता है इसको नहीं पचाना है, तो उसको अपच हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें केवल परमात्मा के कंट्रोल में है और कुछ चीजें दोनों के कंट्रोल में है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हमारी इच्छा पे डिपेंडेंट है। जैसे आप ओला बुक करते हो, तो गाड़ी में आप बैठ गए, तो कुछ चीजें आपकी इच्छा पे है निर्भर, लेकिन कुछ चीजें आपकी इच्छा पे नहीं चलेगा, वो ड्राइवर का ही है मोनोपोली, समझ रहे ना? जैसे आप ड्राइवर को बोल सकते हो कि ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से सीट में आपको बैठना है, आप बोल सकते हो कि ठीक है एसी ऑन कर दो, वो आपकी इच्छा पे है, लेकिन आप कुछ चीजें नहीं चेंज कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके इसका क्या बोलते हैं, जो सिटी ड्राइवर निकाल के रखा है इसको निकाल दो बाहर, मुझे दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। या इंजन में कुछ चीजें है, बोला आप ये इंजन ये निकाल के दूसरा लगाओ, वो आपका नहीं है ना, उसका है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ इच्छाएं हम लोग करते हैं, भगवान को सैंक्शन करते हैं, और इतना फास्ट सैंक्शन का प्रोसेस होता है, फास्ट नहीं बोलना चाहिए, साइमल्टेनियसली हो जाता है। As soon as you desire, the Lord gives the sanction. Okay, all right, raise your hand, and that is when we feel I am raising my hand. That is when Bhagavad Gita 13th chapter Krishna says, what is that verse? Kartaham iti manyate prakrite kriyamanaani gunai karmani sarvasha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Krishna says that all the activities in this material world
are done by material nature under my supervision. I sanction and then material nature does all the activities. But the living entity, one who is ahankara vimudhatma. Vimudhatma means mood means foolish. Vimud means विशिष्ट रूपेण मूढ़, विशेष रूपेण मूढ़, यानी जो बहुत अच्छे तरीके से मूढ़ है वो ऐसा सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, because he doesn't know the function, he doesn't have the knowledge, so he thinks that I am doing, and in this way he gets entangled into action and reaction. But why? Although I am doing the activity, Krishna says, I do the activity, तो Krishna sanctions. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हम गलत कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं वो भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, समझ रहे ना? हालांकि हमारी सारी एक्टिविटी भगवान सैंक्शन करते हैं, बट कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बैड एंड गुड एक्शंस, वी आर रिस्पॉन्सिबल। समझ पा रहे? जैसे मैंने ओला का आपको एग्जांपल दिया, तो गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है? नहीं, गाड़ी आप चला रहे हैं, लेकिन आप चला रहे हैं क्या गाड़ी? नहीं, कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है, लेकिन ड्राइवर नहीं चला रहा, आप चला रहे हैं। समझ रहे हैं कैसे? क्योंकि आप चला रहे हैं मतलब क्या कि आपने डेस्टिनेशन चूज किया ना, तो इसलिए आप जा रहे हो ना, आपका डेस्टिनेशन है ना, वो ड्राइवर का डेस्टिनेशन नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन चला कौन रहा है? ड्राइवर चला रहा है। समझ पा रहे? पक्का थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो समझ पाएंगे। तो गाड़ी चला कौन रहा है? आप चला रहे हैं? नहीं, आप नहीं चला, आप चला रहे हैं लेकिन आप नहीं चला रहे, आप ही चला रहे हैं लेकिन आप नहीं चला रहे। ड्राइवर चला रहा है लेकिन ड्राइवर नहीं चला रहा। समझ रहे? कहने का मतलब यह है कि ड्राइवर सैंक्शन करता है, ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट बनता है, ड्राइवर आपको लेके जाता है, क्योंकि आपको ड्राइविंग नहीं आता है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप गाड़ी चला नहीं सकते, आपके पास गाड़ी भी नहीं है। उसी प्रकार से ये जो शरीर है ये भी गाड़ी है, मशीन है, तो हमारा नहीं है, हम तो इसके क्या है? किराएदार है, किराया दिया है इसका, पिछले जन्म के पुण्य कर्म के किराए हैं, उस किराए से गाड़ी चल रहा है, और जैसे वो किराया खत्म होगा तो गाड़ी से आउट कर दिया जाएगा। तो भगवान जो है, हमारी इच्छा है, हम जाना चाहते हैं कहीं पे, हम इस शरीर को किसी प्रकार से यूज करना चाहते हैं, भगवान सैंक्शन करते हो कि ऑल राइट यू डू दिस, सैंक्शन। लेकिन हर अच्छे या बुरे कार्य का सैंक्शन नहीं करते हैं, जितना हमारा अधिकार है वही सैंक्शन होता है, हर इच्छा को सैंक्शन नहीं करते। समझ पा रहे हैं? हाथ ऊपर करने का इच्छा हुआ, हाथ ऊपर हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसके पिछले जन्म के कर्म उतने अच्छे नहीं है, तो उसके कारण वो उसको पैरालिसिस हो गया है, तो हाथ ऊपर करने का इच्छा रखता है लेकिन सैंक्शन नहीं होता है क्योंकि उसका कर्म नहीं है, तो इसलिए हाथ इच्छा ऊपर नहीं कर पाता है। पैरालिसिस है क्या? मैंने डॉक्टर अभी तक समझ नहीं पाए पैरालिसिस क्या है। बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे मेरे को राइट हैंड में मान लो पैरालिसिस हो गया, मैं कुछ हिला भी नहीं सकता इसको, इसका मतलब ये है कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म ऐसे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये हाथ यूज करने का परमिशन मिले, एक्सेस डिनाइड। तो जैसे आप में से कोई जॉब करता है कॉर्पोरेट, तो वहाँ का जो कंपनी का इंटरनल एप्लीकेशन होता है, अगर आप यूज करेंगे तो जो एडमिन होता है उसको अलग एक्सेस होता है, डायरेक्टर को अलग एक्सेस होता है, नॉर्मल एम्प्लॉय होता है उसको अलग एक्सेस होता है। जो नॉर्मल एम्प्लॉय है वो हायर वाले का एक्सेस करने जाएगा तो क्या लिख के आएगा? एक्सेस डिनाइड। उसी प्रकार से शरीर तो मिल गया, एप्लीकेशन तो है आपके पास, शरीर तो है, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी, अपनी जितनी इच्छा उसे यूज नहीं कर सकते। जितना आपका सैंक्शन है उतना ही कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसलिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इच्छा प्लस कर्म। हाँ। जैसे एग्जांपल के लिए आप कपड़े पहने हो, शर्ट पहने हो, आपने ये जो शर्ट है ये कितने का खरीदा? शर्ट 700 रुपये, 700 रुपये का शर्ट खरीदा। अभी ये शर्ट जो है 1 साल 2 साल के बाद फट जाएगा, 1 साल 2 साल या 1-2 महीने, जो भी है 1 साल 2 साल के बाद फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, फिर नया शर्ट चाहिए। तो नया शर्ट जो आएगा
वो किस पे डिपेंड करेगा कि इनका इच्छा क्या है, पहली बात तो कौन सा ब्रांड का चाहिए, किस तरह का चाहिए, और दूसरा पॉकेट में मनी कितना है। अगर पॉकेट में मनी केवल 100, 150, 150 रुपये, 200 रुपये का ही बजट है तो थोड़े ना 1000 रुपये का शर्ट हर एक इच्छा नहीं मिल पाएगा ना, समझ पाए। तो उसी प्रकार से हमारा इच्छा तो है कि मैं भी अंबानी के जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं भी उसके जैसे IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वो इच्छा पूरी होगी, लेकिन अगर वो अकाउंट बैलेंस होगा तो आपके पास पैसा होगा, यानी कर्म होगा, वो पुण्य होगा। ये बहुत देखिए बहुत लॉजिकल है, कोई भी माइथोलॉजी नहीं है, बहुत सिंपल से लॉजिक है। अदरवाइज आप बताइए कोटा में लाखों लोग पढ़ाई करते हैं, हाँ? और कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं तो खुद देखा, जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं। मेरे बाजू के रूम में एक स्टूडेंट रहता था, 5 साल से बेचारा PMT का तैयारी कर रहा है, और बहुत पढ़ता था, मेरे से डबल पढ़ता था, लेकिन फिर भी क्रैक ही नहीं होता। तो केवल मेहनत करने मात्र से थोड़ी ना कोई पाता है, हाँ? और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बस 3-4 घंटे पढ़ ले, उतने में उनका 100 रैंक आ जाता है, टॉप 100 आ जाता है। IIT में भी मेरे बैच में ये जो स्टूडेंट था उसका 290 रैंक आया था ऑल ओवर इंडिया। तो वो उसको मैं पूछा तो लोगों बोला मैं नहीं पढ़ता, 8-10 घंटे नहीं पढ़ता, वो 4-5 घंटे पढ़ता था, क्लासेस अटेंड करता था पूरी, और फिर जाके शीट सॉल्व करता था 4-5 घंटे। क्यों? क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इतना पुण्य था उसका, तो उसके अनुसार उसको वैसा इंटेलिजेंस मिला, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, इसलिए तो इंटेलिजेंस, और उतना इंटेलिजेंस सफिशिएंट है उसको आराम से क्रैक करने के लिए। वहीं जिसका वैसा इंटेलिजेंस नहीं है तो कितना भी मेहनत करेगा तो नहीं अचीव कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आप मेहनत मत करो, मेहनत तो आपको करना ही है, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंस भी है मान लो, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम लिखेगा नहीं तो कैसे आएगा, नहीं आएगा। यानी मिनिमम इंडेवर जितना रिक्वायर्ड है उस चीज को प्राप्त करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, भगवान के पास जाके बहुत रोता था, बोला हे भगवान मुझे करोड़ों रुपए दे दो, करोड़ों रुपए दे दो, मैं इतना पूजा करता हूँ आपका, इतना भक्ति किया सालों सालों का, तो लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया, कुछ हुआ नहीं, कई महीने बीत गए। बहुत गुस्सा हुआ, बोला क्या है, सब व्यर्थ है, कुछ आप नहीं करते हो। तो भगवान आए, उसको एक थप्पड़ लगाया चाहे, बोले नालायक कहेगा, तुझे करोड़ रुपए चाहिए, जाके लॉटरी का टिकट तो खरीद, तेरे लिए मैं महीनों से उसको रिजर्व करके रखा हूं, तो तू जाएगा लॉटरी का टिकट खरीदेगा तो फिर तेरे नाम पे एडजस्ट करके दे दूंगा, समझ रहे? तो दोनों चीज रिक्वायर्ड है, हार्ड वर्क एंड कर्म, दोनों चीज रिक्वायर्ड है। इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा ना तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, समझ रहे? केवल हार्ड वर्क करेंगे, कर्म नहीं है तो फिर हम फ्रस्ट्रेट होंगे। इसलिए ये भगवद गीता का नॉलेज हमको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि एवरीथिंग इज नॉट इन माई कंट्रोल, कर्म पे भी निर्भर करता है। तो हम अपना इंडेवर करने के बाद जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा हम उससे सेटिस्फाइड रहेंगे। ओके, वॉट एवर हैज कम, नो प्रॉब्लम, आई यूज इट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, इस तरह से, समझ रहा है? तो ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण इस तरह से सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या पॉइंट था, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि हाँ, केवल स्क्रिप्चर्स के द्वारा हमको पता चलता है कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, और स्क्रिप्चर सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए यही शास्त्र, भगवद गीता लीजिए, वेद लीजिए, पुराण लीजिए, उपनिषद लीजिए, इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ के, मटेरियल लाइफ के बारे में चीजें या सोल्यूशन देते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं, हमको बेनिफिट मिलता है। और वही स्क्रिप्चर्स में कुछ एक पार्ट है जो हमको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताता है, जो हमको डायरेक्टली परसीवेबल नहीं है, जो हम परसीव नहीं कर सकते हैं। जैसे शास्त्र आयुर्वेदा आपने सुना है, आयुर्वेदा, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये शास्त्र के अनुसार जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है, यानी सही हुआ ना, तो ये मटेरियल पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर हो गया, समझ पा रहे? उसी प्रकार से स्क्रिप्चर्स का स्पिरिचुअल पार्ट भी होता है जो हम डायरेक्टली हम नहीं देख सकते हैं। स्पिरिचुअल पार्ट में बताया जाता है कि हु इज द सुप्रीम लॉर्ड, व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ड, हु एम आई, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड,
एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये सब बताया जाता है। तो ये हम अपने इस मटेरियल सेंसेस के द्वारा नहीं समझ सकते हैं या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आत्मा है, सोल है, इसको आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा नहीं जान सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेबल नहीं है ये कंप्लीटली डिफरेंट है, मैटर से कंप्लीटली डिफरेंट है, स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल सब्सटेंस को मैटर से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, समझ पा रहे हैं। लेकिन ये सत्य है। किस बेसिस पे हम जानते हैं ये सत्य है? ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ भगवद गीता, शास्त्र। और ये अपना रीजनिंग और लॉजिक से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लॉजिकली समझ सकते हैं। देखिए, हर चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में हम अपने सेंसेस के द्वारा नहीं समझ सकते, देख सकते। जैसे आप इलेक्ट्रॉन है या एयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आप आंखों से देख सकते हैं क्या? कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, या त्वचा से सेंसेशन फील कर सकते हैं? नहीं है। लेकिन कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं? बताइए, कैसे पता चलता है? नहीं, आप सब अभी चेक कर सकते हो। आपका एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ही तो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ही कम्युनिकेशन होता है। तो हो गया ना, इससे पता चल जाता है कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, किसी वायर में करंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? जाके टेस्ट कर दो। वायर में किसी में करंट है और किसी में नहीं है, तो दिखने से, सूंघने से, सुनने से तो नहीं पता चलेगा। अगर हम केवल अपने सेंसेस पे ही निर्भर है पूरी तरह से, तो फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ? फिर जाके टच करो दोनों को तो पता चल जाएगा। तो इसलिए समझने वाली बात है कि हमारे जो सेंसेस, सेंस एक्सपीरियंस है, दैट इज नॉट ऑल इन ऑल टू एक्सप्लेन द ट्रूथ। किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बताने के लिए सेंसेस ये सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे सेंसेस परसीव नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करंट। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सेंसेस पर, ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो होती नहीं है लेकिन हमारे सेंसेस परसीव करते हैं, समझ रहे? सो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ आवर मटेरियल सेंसेस, लिमिटेशन ऑफ दीज सेंसेस। दैट इज व्हाई वी नीड टू take proper knowledge from authority of scriptures, and those scriptures, ऐसे scriptures जिनका कुछ ना कुछ reasonable या logical या verifiable aspect होता है। जैसे regarding soul, तो भगवान कृष्ण ने जब बताया अर्जुन को कि you are not this body or spirit soul, तो भगवान कृष्ण क्या बोले? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। जस्ट लाइक दिस देही, हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे ना, देह और देही। तो देही मीन्स आत्मा। जैसे इस शरीर में रहते हुए भी हम लॉजिकली इसको समझ सकते हैं कि छोटे से बच्चे से लेकर के युवा, तो युवा से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति सेम है, बट शरीर जो है बदल गया है। समझ पा रहे हैं? यानी शरीर बदल गया है पूरी तरह से, लेकिन आत्मा यानी हमारा आइडेंटिफिकेशन वो सेम रहता है। इससे क्या पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। हम लोग स्पिरिट, सोल है, आत्मा है। अदरवाइज कैसे हम चेंज को परसीव कर पा रहे हैं? दूसरी प्रकार से जैसे ये शरीर छोड़ता है व्यक्ति, वो नेक्स्ट बॉडी को प्राप्त करता है। और दिस ट्रांसमाइग्रेशन, दूसरे शरीर को प्राप्त करना, ये डिपेंड करता है कि उसका कैसा एक्शन है थ्रू आउट द लाइफ, क्या कैसे कर्म उसने किए हैं। क्योंकि जैसे कर्म करेगा उसी के अनुसार उसका जो माइंड है उस पर इंप्रेशन बनेगा, और एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी, शरीर छोड़ते वक्त उसी मेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको दूसरा बॉडी, उसको शरीर मिलता है। ये मैकेनिज्म ऑफ चेंजिंग बॉडी है। मन की कैसी स्थिति होती है उसके अनुसार उसको वैसा शरीर मिलता है। हम लोग यहाँ तक कि इस जीवन में भी, इस शरीर में रहते हुए भी हम देख सकते हैं कि मन की स्थिति के अनुसार शरीर का रूप रंग बदलता है। किसी का मन कैसा है उसके कारण उसके शरीर में चेंजेस आते हैं।
आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है, कोई आपका फ्रेंड जिसको आपने पहले देखा था फिर बाद में देखा तो पूरा परिवर्तित हो गया। केवल एज बढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ, वो ऑलरेडी ग्रोन अप है, लेकिन एक अलग लाइफ स्टाइल, अलग मेंटल स्थिति में था तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसका रूप रंग बदल जाता है। तो उसी प्रकार से अंत समय में जैसे मन की स्थिति होती है उसी के अनुसार उसको वैसा शरीर मिलता है। तो इस भौतिक जगत के, इस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी स्थिति होगी मन की तो उसको वैसा ही शरीर मिल जाएगा। और इसी प्रिंसिपल को समझाते हुए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति अत्र संशय, कि अगर अंत काल में मेरा स्मरण हो जाता है, if he becomes conscious of me, कृष्णा कॉन्शियस होता है अगर कोई व्यक्ति, तो क्या प्राप्त करता है? मद भावम सा आगति, मेरे स्वभाव को, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, मेरे नेचर को प्राप्त कर लेता है। भगवान का नेचर कैसा है? स्पिरिचुअल है, प्योर स्पिरिचुअल है, देयर इज नथिंग मटेरियल, सच्चिदानंद, ट्रांसेंडेंटल। दैट इज व्हाई ही इज ऑल अट्रैक्टिव। All attractive means whatever he does is attractive to every living entity. भगवान कृष्ण चोरी भी करते हैं तो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए तो खीर चोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, खीर चुरा लिया, माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। हमें से कोई चोरी करेगा तो वैसे प्रसिद्ध होगा नहीं, जेल में डाल के अच्छे से उसका पिटाई करेगा, प्रसिद्ध तो हो गए लेकिन गलत तरीके से प्रसिद्ध होगा। कोई पूजा करेगा, पूजा नहीं करेगा, लेकिन भगवान को पूजा भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के एक्शंस, जो भी एक्टिविटी करते हैं, भगवान का नेचर वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, मटेरियल में, स्पिरिचुअल है। और उसमें उस स्थिति में, स्पिरिचुअल नेचर में कोई व्यक्ति कैसा भी रहता है तो उसमें क्या होता है? केवल और केवल आनंद करता है। ओनली स्पिरिचुअल ब्लिस इज देयर, नो मटेरियल इनिबिलिटी, कोई मटेरियल जो मिजरेबल सिचुएशन में रहता है। तो वैसा नेचर अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो अपना पूरा लाइफ इस तरह से उसको मोल्ड करना चाहिए कि वो कृष्णा कॉन्शियस बन सके, भगवान के बारे में जान सके। भगवान का नेचर क्या है? ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज जॉयफुल। जो बड़े कंपनी का कोई मालिक होता है तो कई बार वो अपने डेस्क में हाथ रखे से बैठता है, टेंशन में दिखता है, बहुत मैनेज करना है। और छोटा सा कंपनी मैनेज करने में उसका इतना हालत खराब होता है, टेंशन होता है। भगवान पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण का कोई ऐसा फोटो देखा कि सिर पे हाथ धर के रखे हो? हमेशा क्या करते हैं? फ्लूट बजा के स्माइल करते हैं, ऑलवेज जॉयफुल, देयर इज नो मिजरी, देयर इज नो एंजाइटी एट ऑल। लेकिन एक एंजाइटी है, एक छोटा सा एंजाइटी है। पूरा हृदय भगवान का ब्लिसफुल है, लेकिन उसी हृदय के एक छोटे से कॉर्नर में एक एंजाइटी है। आपका क्या नाम है? आपका नाम येलो अभिषेक। क्या एंजाइटी है? कि जो अभिषेक है मुंबई में रहता है, वो इस संसार में क्यों भटक गया है, क्यों उसको दुख मिल रहा है, वो कब वापस आएगा? ये एक एंजाइटी। अभिषेक का मतलब हर कोई, क्योंकि वो सुप्रीम लॉर्ड है ना, अनलिमिटेड है ना। अनलिमिटेड होने के कारण, ऑल पावरफुल होने के कारण वो हर एक लिविंग एंटिटी, हर एक जीव से, हर एक आत्मा से वो इंडिविजुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं। पॉसिबल है कि नहीं? हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 फ्रेंड बना सकते हैं, उससे ज्यादा बनाएंगे तो फिर हम सबको ध्यान नहीं दे पाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे, सबके लिए एंशियस नहीं हो पाएंगे। ये भगवान के पास ये लिमिटेशन नहीं है। भगवान गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, अपने गोलोक नित्य धाम में भगवान हमेशा क्या करते हैं? अपने भक्तों के साथ, करोड़ों करोड़ों भक्तों के साथ लीला में हमेशा उनको डुबोए रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अखिलात्म भूता, हर एक जीव जो इस संसार में है, जो भटक गए हैं, इस शरीर को, भौतिक शरीर को स्वीकार कर लिया है, वो आत्मा उसके भी हृदय में आके, परमात्मा के रूप में आके, उसके हर एक ईच एंड एवरी डिजायर, ईच एंड एवरी एक्शन को सैंक्शन करते हैं, गाइड करते हैं। है ना वंडरफुल? सोचो ऐसा कोई कर सकता है? तो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। दैट इज वाई, बिकॉज ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर
and He is the supreme well-wisher, and He is the only person who is living with us always, eternally, life after life, just to guide us. That is why we should surrender to Him. That is why He can demand. वो डिमांड करते हैं, भगवद गीता में डिमांड किए, you surrender, just surrender unto me, I will free you from all your anxiety, all your miserable condition of life. And what is the meaning of surrender? The meaning of surrender is to become devoted to Him. Meaning of surrender is to understand His instruction and follow His instruction. And what is the supreme instruction? What is the meaning of instruction? इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्देश. निर्देश मतलब कि क्या करना है अभी. समझ पा रहे ना? अभी तक जो मैं बताया, फिलॉसफी थोड़ा बताया, कुछ आपको लेक्चर दिया, कुछ समझाया. अभी इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोला कि मोहित ब्रो मोबाइल दो, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन, अभी मत दो. समझ गया ना? यानी मुझे अभी क्या करना है. तो अर्जुन को ऐसे पूरा गीता समझाया भगवान लॉजिकली कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, मैं कौन हूँ, कैसे इंटरेक्शन होता है, क्या इंटरेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें बताए. फिर फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या दिए जो हम सब के लिए एप्लीकेबल है. वो क्या हमको करना है आप जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सब लोग जानना चाहते हैं. ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोग जानिए और इसको पालन करिए, ताकि जो मेन कंक्लूजन है गीता का वो आप धीरे धीरे अचीव करेंगे और एट द सेम टाइम गीता भी समझते जाएंगे. इंस्ट्रक्शन है भगवद गीता के 9 चैप्टर के 34th वर्स में भगवान बोलते हैं, और फिर वही इंस्ट्रक्शन सेम वापस से रिपीट करते हैं 18 चैप्टर के आखिरी में. वो क्या है? मन मना भगवद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्य सत्यंते प्रतिजान प्रियसुमे. कि अर्जुन, this is my supreme advice, supreme instruction, and the topmost, highest activity which you can do so that you can attain highest perfection in your life. अब सुनो ध्यान से. मेरा परम पूज्य ज्ञान, the most confidential knowledge of all. अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉन्फिडेंशियल जो चीज है वो बताने जा रहा हूं. ध्यान से सुनो. क्या है? मन मना भगवद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु. Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your pranam, obeisances to me. If you do these 4 things, माम एवश्यसि सत्यम ते, माम एव एष्यसि, you will achieve me. Satyam te, I am speaking the truth. There is no lie. Satyam te, pratijano priyasi me, because you are my very dear devotee. That is why I am revealing this most confidential truth to you, not to others. संसार में कितने सारे लोग हैं जो प्रयास करते हैं संसार के दुखों से पार करने के लिए. कितने सारे लोग? 100%. हर व्यक्ति संसार में क्या करता है? 2 ही कार्य करता है. सुख को कैसे प्राप्त करना है, दुख का कैसे निवारण करना है. यही प्रयास कर रहा है ना हर कोई, चाहे साइंटिस्ट हो, फिलोसोफर हो, योगी हो, भोगी हो, त्यागी हो, कोई भी व्यक्ति हो. कुछ लोग जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, मटेरियलिस्टिक पीपल जो होते हैं, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि भोग करके संसार में कितना सारा सुविधा इकट्ठा कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने इंद्रियों का भोग कर लें, उसी से सुख मिल जाएगा, और अपना पहुंच, अपना पैसा, अपने बल से जो भी रुकावटें हैं, दुख है, उसको साइड कर दें. तो ये किसके द्वारा किया जाता है? Those who are most foolish, very less intelligent people, वो ऐसा सोचते हैं. जो थोड़ा ये सब करने के बाद एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि नहीं ये सब बात नहीं करता है, कितना भी पैसा कमा लो कष्ट तो रहता ही है, कोई ज्यादा फायदा नहीं है. तो वो लोग फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. वो फिर संसार को सब कुछ, संसार के जो अटैचमेंट्स है उससे फ्री होना चाहते हैं. जो अननेसेसरी इंटेंगलमेंट है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, इधर उधर गंदे चीजों में जाता है, तो उससे फ्री होने का कोशिश करते हैं. क्योंकि वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जब तक हमारा मन इस भौतिक आसक्ति, अटैचमेंट के पीछे भागता रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसके पीछे भागता रहेगा, तब तक हमको दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलने वाला है. वो इसको ये समझ जाते हैं. फिर वो क्या करते हैं? इससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं.
और इससे मुक्त होने के लिए वो क्या करते हैं, संसार को त्यागते हैं। हाँ, वो लोग हिमालय में जाते हैं, त्यागी बनते हैं, योगी बनते हैं और संन्यास लेते हैं। लेकिन ये दोनों तरह के व्यक्ति जो हैं उस अल्टीमेट परफेक्शन को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो वो अल्टीमेट परफेक्शन कैसे मिल सकता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को सुप्रीम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देते हैं कि अर्जुन, अगर तुम इस संसार की चीजों से आसक्त हो जाओगे तब भी तुम दुखी रहोगे, और इस संसार की चीजों से घृणा करोगे तब भी दुखी रहोगे। दोनों ही क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि का नाम सुना आपने? विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या की, योगी थे पहले, भक्त नहीं थे तब। तो 60,000 साल के बाद एक अवसर आई तो काम के वशीभूत हो गए और संग किए और पूरा तपोबल नष्ट हो गया। फिर वो बहुत पछताए, बोले कितना मैंने गड़बड़ कर दिया। तो इस बार डिटरमाइंड हो गए, कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा ये सब चीजें। फिर वापस तपस्या में लग गए। फिर कुछ समय बाद दूसरी अप्सरा भेजा इंद्रदेव ने, तो उससे घृणा किया और क्रोध करके उसको शाप दे दिया, तो उससे भी सब खत्म हो गया। तो दोनों ही राग द्वेष दोनों ही संसार में फंसाता है। इसलिए भगवान कृष्ण बोले कि राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। राग और द्वेष दोनों से जो मुक्त हो जाता है वही इस संसार के दुखों को पार कर सकता है। और राग और द्वेष दोनों से कैसे मुक्त हो सकता है? केवल और केवल एक ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, जो कि भक्त है। और कैसे भक्त बना जाता है, कैसे कृष्ण कॉन्सेप्ट, कृष्ण भावनामृत हो जाता है, जो वही इन दोनों से मुक्त हो सकता है। उसी का सुप्रीम इंस्ट्रक्शन भगवान कृष्ण दे रहे हैं। क्या? मन मना भगवत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु माम वे सत्यम ते प्रीति जानो प्रियसुमे। और ये इतना सिंपल है और इतना आसानी से किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। कि इसको करने के लिए आपको बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, कुछ बेसिक चीजें पालन करना है। भगवान ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर भगवान गए वापस, सोचे कि अब बहुत अच्छा मैंने सब कुछ सिखा दिया, पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे इस संसार में राग और द्वेष से मुक्त होकर केवल मेरा प्रति चिंतन कैसे होगा, और वो लोग मेरे धाम आ जाएंगे, दुखों से बच जाएंगे। ये भगवान को क्या मालूम था कि कलयुग आ जाएगा? भगवान को मालूम था, देखिए भगवान को क्या मालूम था कलयुग में हम जैसे लोग इतने ब्रेन सब्सटेंस इतना डल हो जाएगा कि हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भगवान फिर से आए। भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए थे, भगवत गीता सुना के गए, थ्योरी। तो कृष्ण इज थ्योरेटिकल टीचर, थ्योरी सिखा। फिर वही कृष्ण सोचे अभी कैसे इसका उद्धार करना है। तो वही कृष्ण 500 साल पहले किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और इस बार भगवान बन के नहीं आए, भगवान का भक्त बन के आए कि अपना भक्ति कैसे करना ये सिखाऊंगा। और इसलिए भक्त के भाव को लेके आए और भक्ति करना सिखाया। और खुद फिर मन मना भगवत भक्तो बोले थे ना, मन मना मतलब engage your mind in thinking of me all the time, always think of me. So how this is possible? By chanting his name. So he taught this principle of chanting the holy name of Krishna all the time. Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने मात्र से मन मना अपने आप हो जाता है। मन भक्त become my devotee. Become my devotee means one who renders service to Krishna, that is called devotee. वो भक्त कहलाता है। मध्याजी वर्शिप करना, यानी भगवान का दर्शन करना, आरती अटेंड करना, वो मध्याजी है, वर्शिपिंग द लॉर्ड। एंड भगवत गीता पढ़ना और सुनना, दैट इज ऑल्सो वर्शिप ऑफ कृष्ण। 18 चैप्टर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो इस भगवत गीता को पढ़ता है, सुनता है, ही इज वर्शिपिंग मी विथ हिज इंटेलिजेंस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वर्शिपिंग कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं कृष्ण को। कैसे? गीता के ऊपर डिस्कशन करके। तो आप घर पे बैठ के जब गीता पढ़ते हैं, so that is as good as worshiping supreme Lord Krishna. और जब आप हरि नाम लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो क्या है? मन मना, थिंकिंग ऑफ मी। तो कृष्ण बोले ऑलवेज थिंक ऑफ मी,
हमेशा मेरा चिंतन करो। तो अब प्रश्न उठता है हमेशा उसके लिए जप करना पड़ेगा, हमेशा जप तो हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो ये बताया कि हरि नाम लेने से आप भगवान का चिंतन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता निमिता निमिता स्मरणे न कालः। वो क्या है, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् इट इज माय मिसफॉर्च्यून तत्रापि न अनुरागः। Because of my misfortune, I have no attachment for holy name of Krishna. तो उसका क्या सोल्यूशन दिए? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में आने मात्र से हरिनाम में आसक्ति आ जाती है, अटैचमेंट आ जाता है, और आप जब करना बढ़ा जब बढ़ जाता है आपका। आप में से कितने लोग हैं जो कभी यहाँ टेम्पल में रात को स्टे किए हैं? ओके, कुछ लोग किए हैं। तो जो लोग स्टे किए हैं आप उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जब आप स्टे नहीं करते थे, घर पे थे या रूम पे थे, बस वीकली प्रोग्राम के लिए आते थे, तो आप कितना माला जप करते थे? 1 माला 2 माला, हाँ? वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे स्टे किए एक बार भी, और सुबह सुबह मंगला आरती इतना सुंदर भगवान का दर्शन करके और भक्तों के साथ बैठ के जब जप किए, तो कुछ लोग होते हैं पहले ही शॉट में 16 माला जप कर लेते हैं। सोचिए कितना आसान है। तो भक्तों का संग दिए चैतन्य महाप्रभु। इस संग में आपका दुर्दैव है, मिसफॉर्चून है कि आपको भगवान के नाम पे रुचि नहीं है, तो जप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये संग दिए ताकि हम भगवान के नाम का जप ज्यादा से ज्यादा कर सकें। और इसी संग में फिर हमको क्या मिलता है? भव मद भक्त, मेरा भक्त बन जाओ, यानी मेरा सेवा। जब आप भक्तों के संग में आएंगे तो सेवा भी मिल जाएगा। उसी पर ये चारों प्रिंसिपल बड़े आसानी से पालन हो जाते हैं इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और जैसे ही ये हुआ, इसको पालन कर लिया, सो दैट पर्सन बिकम्स कृष्ण कॉन्शियस। राग द्वेष विमुक्त है, तो राग द्वेष मुक्त होकर फिर इस संसार के जितने भी दुख हैं यहाँ से वो पार जा सकता है। दिस इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया केवल और केवल इसी पर्पस के लिए किया कि हम एसोसिएशन में आके बड़ी आसानी से कृष्ण कॉन्शियस बन सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो अगली बार आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। So, what is realization means? Like, what is it?